جو میں نے آج تھمبنیل بھی لگایا. آپ بتائیے، ایک طرف بات چیت اور دوسری طرف حملے، یہ کیسے ممکن جاری ہے؟ یعنی 3 ہفتے اور جواب میں ایسا نہیں کہ حزب اللہ نے جوابی کارروائی نہیں کی ہے. اب حزب اللہ نے بھی کئی راکٹ سے حملے کیے ہیں اسرائیل کے اندر، تل ابیب میں. لیکن فائنلی ڈونالڈ ٹرمپ نے اب انکار کر دیا. لیکن یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. سچائی یہ ہے کہ ایران نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی یہ وعدے کر چکا تھا کہ وہ امریکی ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں کرے گا، امریکی وفد سے ملاقات نہیں کرے گا. بہت کلیئر کٹ. اور غزہ پہ قبضہ کرتے چلے جاؤ، لبنان پہ قبضہ کرتے چلے جاؤ، سیریا پہ قبضہ کرتے چلے جاؤ. یعنی اسرائیل جو ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. تو کیا یہ منصوبہ ہے؟ یہاں پہ جمیل صاحب لکھ رہے کہ اسرائیل کبھی نہیں رکے. نہیں، اسرائیل رکے گا، لیکن اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایران کوئی سخت جواب دینے کے موڈ میں آ گیا. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں. بات کروں گا ایران، امریکہ، اسرائیل، لبنان، فلسطین اور پورے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر. خاص طور سے پاکستان پر سب کی نظریں مرکوز ہیں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا آج کہ کس طرح سے پاکستان میں ایران اور جو پاکستان کا ڈیلیگیشن یعنی پاکستانی جو آفیشلز ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں. لیکن فائنلی ڈونالڈ ٹرمپ نے اب انکار کر دیا. لیکن یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. سچائی یہ ہے کہ ایران نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی یہ وعدے کر چکا تھا کہ وہ امریکی ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں کرے گا، امریکی وفد سے ملاقات نہیں کرے گا. بہت کلیئر کٹ کہہ دیا تھا. اور اپنا پورا پروگرام جو کل میں نے بتایا بھی تھا کہ پہلے وہ پاکستان جائیں گے، پاکستان سے عمان جائیں گے اور عمان سے وہ روس جائیں گے. یہ انہوں نے پورا پروگرام پہلے ہی بتا دیا تھا، بنا دیا تھا. اور اس سے لگ رہا تھا، حالانکہ بار بار وائٹ ہاؤس سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جے ڈی کشنر اور وٹکاف یہ جو ہیں یہ پاکستان جائیں گے اور ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے. یہاں تک بات آ گئی تھی کہ ایسا ہوگا کہ دونوں الگ الگ کمروں میں بیٹھیں گے اور جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ انہیں لیٹر یا بات چیت کی جو نقل ہے وہ لا کر کے دیں گے اور اس طرح سے بات چیت ہوگی، یہ کہا جا رہا تھا. لیکن اب یہ دیکھیں، الجزیرہ کی بالکل تازہ رپورٹ ہے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران مذاکرات کے لیے امریکی مذاکرات کاروں کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا ہے. یہ آپ دیکھیے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے. پہلے ایران کا ڈیلیگیشن گیا تھا، بار بار سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ جب یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کرے گا؟ ملاقات نہ کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن انہوں نے بتا دیا تھا. اور سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی وجہ اسرائیل ہے، جو میں نے آج تھمبنیل بھی لگایا. آپ بتائیے، ایک طرف بات چیت اور دوسری طرف حملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگاتار سمجھوتے کے باوجود، سیز فائر کے باوجود لگاتار آپ دیکھیے اسرائیل کی طرف سے ساؤتھ لبنان میں حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں ریڈ لائن کھینچی جا رہی ہے اور لگاتار سیز فائر کا النگھن ہو رہا ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایسے میں کیسے بات چیت ہوگی
जबकि ईरान की बातचीत के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट शर्तें। एक शर्त ये थी कि जो अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ होर्मुज के चारों तरफ, वो नाकाबंदी खत्म करे, नंबर एक। नंबर दो ये कि लेबनान के साथ सीजफायर हो और इजराइल के हमले बंद हो। ये दो शर्तें, और उस पे भले ही अमेरिका कुछ कह रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया देख रही है कि लगातार इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है। ऐसे में कैसे बातचीत होगी और क्यों कोई बातचीत करेगा? तो ये वजह नजर आती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बहुत वादे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए एलची जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तान का तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को सफर की मंसूखी के बारे में बताया है। इसी तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पे एक और, यहाँ लेबनान के कैनान में 3 इजरायली हमले, ये आप देखिए। और वही मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि दोनों खबर जो इस वक्त चल रही है वो अल जजीरा के बिल्कुल ताजा जो पोर्टल है उस पे ये खबरें चल रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए और फिर आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पे कौमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के जिला हन जबील के कस्बे कैनान पर लगातार 3 फदाई हमले किए हैं। 3 बड़े हवाई हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। लेबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि 10 रोजा जंगबंदी में मजीद 3 हफ्तों के लिए तौसीक किए जाने के बावजूद जनूबी लेबनान पर इजरायली फदाई हमले जारी है, यानी 3 हफ्ते। और जवाब में ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, अब हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट से हमले किए हैं इजराइल के अंदर, तिल अवीव में। लेकिन सवाल यह है कि जब 3 हफ्ते की जंगबंदी और बढ़ा दी गई थी, उसमें तौसीक कर दी गई थी, तो फिर ये हमला क्यों? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप खामोश है? बार बार इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि लेबनान पे हमले के लिए हम पे कोई रुकावट नहीं है, हम पूरी तरह से आजाद हैं। यानी वो जब चाहेंगे जिस पे हमला कर देंगे, वो ईरान पे चाहेंगे ईरान पे हमला कर देंगे, वो लेबनान पे हमला कर देंगे, वो गाजा पे हमला करेंगे, वो यमन पे हमला करेंगे, वो कतर पे हमला कर देंगे। लेकिन उन पे जब हमला होगा तो उसे दहशतगर्दी करार दे दी जाएगी। तो ये क्या है? क्या दुनिया बावली है? दुनिया के दिमाग नहीं है? दुनिया सोच नहीं रही है कि हो क्या रहा है? तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये अपने आप में इस वक्त के ब्रेकिंग न्यूज अगर आप इसे कहें, क्योंकि जिस तरह की तैयारी पाकिस्तान में चल रही थी, वहां ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया था, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने बहुत क्लियर कट, मैं आपको बता दूं कि ईरानी डेलीगेशन ने नहीं कहा कि हमारी बात अमेरिकी डेलीगेशन से होगी या हम अमेरिकी डेलीगेशन से बात करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये अच्छा जो अब यहाँ पाकिस्तान की किरकिरी होना तय थी। पाकिस्तान के किरकिरी इसलिए कि पाकिस्तान जिस तरह से अपना फायदा वहां पे तलाश कर रहा कि कुछ भी हो हमारा फायदा हो जाए, हमारा किसी तरीके से वहां पे काम बन जाए। तो लेकिन चलिए, जिस लालच में ही सही, लेकिन वहां पे एक बातचीत का माहौल। लेकिन सवाल ये है, बड़ा अजीब, मुझे हैरत इसलिए होती है कि क्या बात, जब ईरान मना कर रहा है और पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को ये डिक्टेट कर सके कि भाई आप नाकेबंदी तो खत्म करो, आप लेबनान पे हमले तो रुकवाओ,
ये कहने की हिम्मत नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर किस बुनियाद पे बातचीत आप, लेकिन फिर भी ईरानी डेलीगेशन गया। और आज आपको बता दें, मशहद में और तेहरान, यहाँ से जो इंटरनेशनल कुछ फ्लाइट्स हैं जो मदीना मुनव्वरा के लिए, सऊदी अरब के लिए और कुछ और जगहों के लिए इंटरनेशनल के कुछ खास फ्लाइटों को आज राहत दी गई है और उन्हें उड़ान भरने दिया गया है। तो वहां के हालात मामूल पर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ काफी कसा हुआ है और आज 34 जहाज, 34 टैंकर जो है उस ईरान ने निकाले हैं। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी नाकेबंदी के बावजूद अमेरिका की, ईरान अपना काम कर रहा है। यहाँ पे ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची आला सतही मुलाकातों और जंग के खात्मे के लिए तेहरान के मुतालबात की फेहरिस्त पाकिस्तानी हुक्काम तक पहुंचाने के बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान रवाना हो गए। यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाद अदा ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए एलची जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का पाकिस्तान का तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। इस्लामाबाद में अल जजीरा के नामानिगार ने कहा कि पाकिस्तानी सालिस यानी मीडिएटर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से मोहतात तौर पर पुरुम्मीद हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद लग रही। इजराइल ने जुनूबी लेबनान पर अपने हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए, यहाँ पे आप देखिए कि लगातार जो हमले की बात आ रही, लगातार वो हमला किया जा रहा है। और यही वजह है, आप देखिए कि सवाल ये है कि हमला लगातार क्यों हो रहा है, क्यों हमला किया जा रहा है। यहाँ पे इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीह के बावजूद उनकी अफवाज को लेबनान में कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी है। अब आप ये बताइए, तो सवाल ये है कि फिर जंगबंदी के मानी क्या है, जंगबंदी हुई क्यों है? अगर इजराइल आज़ाद है, यानी इजराइल आज़ाद है, ये जंग करेंगे, दूसरा बंदी रहेगा, ये मतलब। इसी तरीके से आप देखिए गाजा में क्या किया, यही किया। लेबनान में क्या किया, यही किया। सीरिया में लगातार हमले कर रहे हैं। सीरिया में लगातार जो उसकी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन वहां पर भी अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है ये इजराइल। और सब खामोश तमाशाई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या ये उलझा करके ईरान और अमेरिका बाकी जगहों पे ये कब्जा करने का इनका मंसूबा है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान उलझे रहे, ये आपस में बातचीत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शाय शूई शाय शूई शाय शूई करो और गाजा पे कब्जा करते चले जाओ, लेबनान पे कब्जा करते चले जाओ, सीरिया पे कब्जा करते चले जाओ। यानी इजराइल जो है वो अपना काम करता चला जाए। तो क्या ये मंसूबा है? यहां पे जमील साहब लिख रहे कि इजराइल कभी नहीं रुके। नहीं, इजराइल रुकेगा, लेकिन और मुझे लग रहा है कि अब ईरान कोई सख्त जवाब देने के मूड में आ गया, ऐसा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या ईरान जो अपना दौरा, जो इसके बाद वो ओमान जाएगा, ओमान के बाद रूस मॉस्को जाने की तैयारी है, तो उस पे भी हम गौर कर रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, दे कैन कॉल अस एनी टाइम दे वांट। अब यहाँ पे देखिए एक और बिल्कुल ताजा अपडेट एक और आई है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि अब देखिए ताजा अपडेट, एक के बाद एक ताजा अपडेट आ रही है। और मैं समझता हूं कि ये अपडेट बड़ी अहमियत की हामिल है। इन अपडेट्स का आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बहुत जल्द खास मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अपडेट्स है, यहाँ पे ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि वो जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। या स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुबैना तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात को बहाल करने की कोशिश के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत नहीं जाएंगे।
किया गया था। यहाँ सफीरों के दौरे की मंसूबी का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू कर देगा। अब ये व्हाइट हाउस से एक तरीके से क्लियर किया गया है, वजाहत की गई है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो इसका मतलब जंग नहीं है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अमेरिका अटैक कर देगा ईरान पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, अमेरिकी खबर रसा इदारा एक्सियोस को बताया कि हमने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। यहाँ पे देखिए, ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को बताया कि वो जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों के बाद हफ्ते की शाम इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि अब जो ईरानी डेलीगेशन है वो यहाँ से रवाना हो गया है और वो ओमान जाएगा, जैसा कि प्रोग्राम था। और ओमान के बाद वो यानी मस्कट से वो मास्को के लिए रवाना हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देखिए, ये बिल्कुल ताजा अपडेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे भरोसा किया जाएगा अमेरिका पे, कैसे माना जाएगा कि अमेरिका जो है वो हमला नहीं करेगा या वो कार्रवाई नहीं करेगा। आप देखिए, लेबनान पे तो हमले हो रहे हैं ना, तो लेबनान पे हमले क्यों हो रहे हैं? और राशिद रिजवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा एक चूक हो गई ईरान। ईरान जब ये जंगबंदी कर रहा था तो ये कहता कि हाँ, अगर इजराइल लेबनान के साथ जंगबंदी को नहीं मानता तो हमारी और अमेरिका की जंगबंदी होगी, इजराइल पे हम हमले जारी रखेंगे। ये कहना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कहा गया। तो अब एक तरीके से ये जो इजरायली हमला है, अब इसकी जवाबी कार्रवाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरू करने की पूरी तैयारी में है। पूरा इनका मंसूबा जो है वो यही है कि जंग की तैयारी कर दी जाए। और ईरान का क्या रुख होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ईरान जंग के मूड में नहीं है, फिलहाल वो जंग नहीं करने जा रहा है। लेकिन क्या लगातार जिस तरह से ये माना जाए कि हमला किया जा रहा है, लगातार आप देखिए हमला लेबनान पे हो रहा है, तो क्या ईरान खामोश तमाशाई बना रहेगा? क्या ईरान इस मसले पर बिल्कुल नहीं बोलेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। और अभी नहीं बोलेगा तो सवाल ये है कि ईरान कब बोलेगा? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या ईरान ये देखता रहेगा कि लेबनान पे अटैक हो रहा है? क्या अंसारुल्लाह लाहौती ये देखते रहेंगे? और फिर आप ये देखिए कि लगातार किस तरह से यहाँ पे लगातार आप देखिए कि चाहे वो गाजा हो या लेबनान हो, मैं फिर बता रहा हूं कि उसे निशाना लगातार बनाया जा रहा है और उसे टारगेट किया जा रहा है। और वहां पे लोग जो है वो मर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग भी, जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके लोग भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सियोस ने हफ्ते के रोज रिपोर्ट किया, यानी आज के रोज रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने $1 मिलियन की कोशिश शुरू की, जिसकी कयादत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक साबिक यहाँ पे सीनियर माविन ने की है, ताकि ये मुतासिर किया जा सके कि मसनूई जहानत यानी एआई सिस्टम किस तरह मुल्क की तस्वीर कशी करता है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे एक्सियोस ने ये रिपोर्ट की है। हमारे साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा सितंबर में इजराइल ने रिपब्लिकन डिजिटल स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ब्रेड पार्स्कल के खिदमात हासिल की, जिन्होंने ट्रंप की 2020 की मुहिम का इंतजार किया। इजराइल के हामी ऑनलाइन आउटरीच इकदाम को चलाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तवज्जो का एक हिस्सा एआई प्लेटफॉर्म्स थे, जिनके बारे में इनका ख्याल था कि वो इजराइल के बारे में तनकीदी या मनफी मालूमात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए पार्स्कल की टीम ने एक प्रोजेक्ट
پر کام کرنا شروع کیا جس کا مقصد اسرائیل کو زیادہ سازگار روشنی میں پیش کرنے کے لیے اے آئی سسٹم حاصل کرنا۔ تو یہ رپورٹ ہے